Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. Today we are going to study about the introduction of hydrology and hydrology deal with, right? So let's start with this introduction. Hydrology means the science of water. It is the science that deal with the occurrence, circulation and distribution of the water on the earth. आप लोग ऑलरेडी स्कूल टाइम में या फिर आप आगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ के आए हो, राइट? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? सो हम लोग वो आज फिर से रिपीट करेंगे. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली क्या है, right? So hydrology is a broad subject of a interdisciplinary nature drawing support from aligned sciences, right? So let's start with this hydrological cycle. So hydrology deal with the estimation of water resources, the study of processes such as precipitation, runoff, evaporation, evapotranspiration and their interaction, and the study of a problem such as a flood, drought and strategies of a combine of them, right? So we are going to study about all these thing in this subject. So engineering hydrology, that is also called applied hydrology. So a study concerned with the engineering applications which is in a design of any hydrological material, operation of a projects dealing with the water supply, irrigation and drainage, water power, flood control, navigation, coastal works, sanitary control, recreational uses of water, etc. So basically what is a hydrological cycle? So sun, you can see in this figure, there is one sun, water from ocean, ground and atmosphere. So आप लोगों को पता है कि एक सर्कुलर मूवमेंट होती है, राइट? जो सन की इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वाटर जो ओशियन में होता है वो वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में जाता है, अगेन वो रेन थ्रू ग्राउंड पे आता है. सो ये एक सर्कुलर मूवमेंट है, हम उसको एलोब्रेट करके देखेंगे यहाँ पे. सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ अ जनरल कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ अ वाटर फ्रॉम द ओशियन टू एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर टू द ग्राउंड एंड बैक टू द ओशियन अगेन, राइट? So sun is the main source of the energy for a hydrological cycle. So let us consider the cycle begin with the oceans, right? So there are various stages of the hydrological cycle. So you can see in this figure various stages. The first one is the water from the ocean convert in a vapor by a evaporation, right? After evaporation that will come back to a ground through a precipitation. अगेन प्रेसिपिटेशन भी होता है, स्लो मेल्ट होता है, रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ होता है. अगेन ये सरफेस रन ऑफ में से आधा पानी ग्राउंड में ये ओशियन में वापस आता है, आधा पानी ये ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन के थ्रू अंदर स्टोर हो जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर, राइट? आधा पानी हम लोग यूज़ करते हैं और अगेन जो एक्सेस वाटर है वो अगेन ओशियन में चला जाता है. सो ये पूरी एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. ये आप देख सकते हो ये फिगर में कि इवेपोरेशन हो रहा है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, अगेन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है और साथ में ट्रांसपिरेशन भी होता है. जो ट्री में या उसमें जो वाटर होता है वो भी ट्रांसपिरेशन थ्रू एयर में जाता है. उसके बाद ये रन ऑफ के थ्रू अगेन वाटर सी में आता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, आधा पानी सब सॉइल के अंदर, आधा पानी पर्कुलेशन होता है और आधा पानी अंदर ग्राउंड में से डायरेक्टली ओशियन को मिलता है, ठीक है? सो आप ये फिगर के थ्रू बहुत इजीली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ सकते हो. The hydrological cycle. So the hydrological cycle is a general continuous circulation of a water from the ocean to atmosphere. ये मैंने आगे आपको explain किया, right? And to ground back to a ocean again, right? So various stages of a hydrological cycles. तो hydrological cycle के different stages कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है evaporation, precipitation, infiltration and transpiration. So it is a continuous process.
So each path of a hydrological cycle may have a one or more of following, right? So that is a transportation of water, temporary storage, change of state. So टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हम लोग एक एक देखेंगे. सो प्रेसिपिटेशन के कौन से टाइप्स होते हैं. सो प्रेसिपिटेशन के टाइप्स होते हैं कन्वेक्टिव, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक, राइट. साइक्लोनिक में दो होते हैं, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट. तो फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन कौन से होते हैं, हमें पानी कौन से फॉर्म में मिलता है. सो थ्रू अ रेन, स्नो, ड्रीजल, ग्लेज, शीट एंड हेल. सो रेन आप लोगों को पता ही है कि रेनफॉल मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं. सो रेनफॉल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ डेप्थ टू विच रेन वाटर would stand an area of a rain were collected in it, right? So rainfall is measured by a rain gauges. So rain gauge is a cylindrical vessel assembly kept open to the collect rain. जहाँ पे भी रेन आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेन गेज एक वन टाइप ऑफ सिलेंडर होता है, उसको हम लोग ओपन एरिया में रख देते हैं जहाँ पे रेनफॉल होता है. टाइप्स ऑफ रेन गेज. तो रेन गेज के डिफरेंट टाइप होते हैं. तो उसमें दो टाइप है मेन, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, राइट. सो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में भी अलग अलग टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट है सीमोन्स गेज, उसके बाद है स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग गेज, उसके बाद है टाइप रेन गेज. और रिकॉर्डिंग मतलब सेल्फ रिकॉर्डिंग में क्या है, टिपिंग बकेट, वेइंग टाइप, फ्लोट टाइप, टेलीमीटरिंग एंड रडार, राइट. सो ये टिपिंग बकेट, वेइंग टाइप, फ्लोट टाइप, ये सारे जो टाइप्स है वो सेल्फ रिकॉर्डिंग है, मतलब कि ऑटोमेटिक रेन गेज है, जिसमें हमें जाके रीडिंग्स नहीं लेने पड़ते हैं, डायरेक्टली हमें ऑटोमेटिकली उसके रीडिंग्स हमें पता चल जाते हैं. सो अब लोग अब डीप में देख लेते हैं कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस जो होते हैं, it does not record the rainfall directly but only collect the rainwater, which when measured gives the total amount of the rainfall at the given point of the time, right. हम लोगों ने जितने टाइम के लिए रखा है उसके उतने टाइम में कितना पानी उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कितना पानी कलेक्ट हुआ है, उसके ऊपर से हम लोग कंसिडर करते हैं कि कितना पानी आया है. सो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में ऐसे ये आप देख सकते हो, ये फिगर में प्रेसिपिटेशन गेज होते हैं जिसमें वन पोल होता है, दो कलेक्टर होते हैं. थर्ड नंबर का क्या है, सपोर्ट गैल्वेनाइज्ड. आप ये फिगर के अंदर थर्ड नंबर जो दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट है. फोर्थ है फनेल होती है एक, आपको ये फनेल ये स्लोप जैसे दिखाई दे रही है. और 5 है रिंग, स्टील की रिंग होती है. और रिकॉर्डिंग टाइप के जो रेन गेज होते हैं, so rain gauge is that automatically record the intensity of the rainfall over a period of the time in a form of a pen terrace or a clock driven chart, right. उसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये चार्ट ड्रॉ हो जाता है. सो द ग्राफिक रेन गेज कंटेन्स फर्स्ट रिसीवर में क्या होता है कि आपका जो रेनफॉल हो रहा है वो रिसीव होगा. फ्लोटर आप यहाँ पे देख सकते हो. उसके बाद थर्ड है साइफोन एंड 4 है रिकॉर्डिंग नीडल की वजह से क्या होगा कि आपका जितना भी कलेक्ट हो रहा है उतना वो नीडल के थ्रू ग्राफ रेडी करेगा. उसके बाद है ड्रम विथ अ डायग्राम. Computation of average rainfall over a basin. So in order to compute the average rainfall over a basin, a catchment area or rainfall is measured at a number of stations located in that area. So if basement area contains more than one rain gauge station, then फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल. अगर हमें एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करना है तो ये मेथड्स है, एरिथमेटिक मीन मेथड, सेकेंड है थाइसन पॉलीगन मेथड, राइट. सो ये मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वो मेथड्स हम लोग देखेंगे. एरिथमेटिक मीन मेथड.
So average rainfall is calculated by a arithmetic average of a recorded rainfall at a various stations of a selected area. ठीक है, हम लोगों ने जो एरिया सिलेक्ट किया है उसके डिफरेंट स्टेशन पे हमारा क्या होगा, एवरेज रिकॉर्ड होगा, एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट होगा. सो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग है. ठीक है, सबसे इजी मेथड है. सो एज द नेम सजेस्ट द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय अ डिवीजन ऑफ अ सम ऑफ रेन डेप्थ. राइट, जो रेन की डेप्थ होती है उसका जो सम होता है उसका हम लोग उसके डिवाइड करते हैं बाय अ डिवीजन ऑफ सम ऑफ रेन डेप्थ recorded at a different rain gauge station of a basin by a number of stations. ठीक है, सो उसमें P क्या है, सो डिफरेंट टाइप के ये कलेक्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो डेप्थ है उससे डिवाइड कर देंगे. सो हमें डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन मेथड से ये एवरेज रेनफॉल मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड है थाइसन पॉलीगन मेथड. सो this is a weighted mean method, right? So the rainfall is never uniform over the entire area of the basin or a catchment, but varies in a intensity and duration from place to place. different जगह पे उसकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है, टाइम का ड्यूरेशन भी चेंज होता है. सो उसके लिए rainfall is recorded by each rain gauge station and that should be weighted according to the area and it represents, right? So the method is more suitable under this following situation. So where area of is a moderate size, when rainfall stations are a few compared to the size of basin and a moderate rain gauges, right? सो आप ये फिगर में देख सकते हो थाइसन पॉलीगन मेथड एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं और एरिया फाइंड आउट करने के बाद जितने एरिया में जितना कलेक्ट हुआ है उससे डिवाइड करेंगे. राइट, उससे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये P1 है और A1 है, तो A1 वाले एरिया में इतना रिकॉर्ड हुआ था उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो ऐसे P1A1 प्लस P2A2 ऐसे PMAM तक रहेगा और उसके बाद रहेगा उसको डिवाइड करेंगे सारे एरिया से. सो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. सो थाइसन पॉलीगन मेथड का ये इक्वेशन है P1A1 प्लस P2A2 सो अप टू PNAN divide by A1 A2 up to AM, right? So this ratio AI upon A is called a weightage factor of a station I, right? उसके बाद थर्ड मेथड है आइसोहेटिकल मेथड. सो आइसोहेटिकल मेथड इज अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस वेयर रेनफॉल अमाउंट्स आर इक्वल on a rainfall map of a basin. So an isohetical map showing counters of a equal rainfall is a more accurate picture of a rainfall over the basin. So this method is more suitable under the following condition. So कौन सी condition में ये method suit होती है? So for a hilly and rugged areas, for a larger areas over a 5,000 kilometers where and for areas where the network of the rainfall station within the storm area is sufficiently dense, there isotetical rainfall method is used, right? So basically isotetical method में P1, P2, P3 up to Pn होती है. वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ द आइसोहाइट्स, राइट? A1, A2 एंड A3 क्या होता है, एरिया ऑफ द आइसोहाइट्स रिस्पेक्टिवली. कैपिटल A क्या होता है, टोटल कैचमेंट एरिया होता है. एंड P बार जो हम लोग मीन प्रेसिपिटेशन ओवर द कैचमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट कर रहे हैं. सो P बार वो है. सो इक्वेशन रहेगा A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 प्लस A2 इंटू P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2. सो वो कहाँ तक रहेगा, अप टू AN-1 मल्टीप्लाई बाय विद द PN-1 प्लस PN बाई 2 डिवाइड बाय होल एरिया. सो ये फिगर में आप देख सकते हो, ये है आइसोहाइट इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ ए इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड्स. जो इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड्स है उसको ज्वाइन करता है. ठीक है,
So the isoheight method is superior to the other two methods, especially when स्टेशंस आर लार्जर इन अ नंबर. ठीक है, बहुत सारे नंबर्स के स्टेशंस होते हैं, तब ये आइसोहाइटिकल मेथड बहुत यूज़फुल है. हम लोग ये सारी मेथड्स जो हम लोगों ने आज पढ़ी है उसके एक एक एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे के लेक्चर में. ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग और भी देखेंगे. उसके बाद टॉपिक है प्रेसिपिटेशन ऑफ डेटा. सो before using the rainfall data, it is necessary to check the data for a continuing and consistency, missing data and record errors, right? Estimation of a missing data. तो सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन करेंगे. प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा. जैसे कि गिवन एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यूज़ है P1, P2, P3, राइट, एंड नेबरिंग स्टेशंस ऑफ स्टेशंस है A1, 2, 3 एंड M रिस्पेक्टिवली. द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कौन सा मिलेगा हमें, N1, N2, N3 अप टू NM, राइट. सो टू फाइंड द मिसिंग प्रेसिपिटेशन Px of station X, we have this equation Px is equal to Nx upon M multiply by with the P1 by N1 plus P2 by N2 plus P up to Pm by N, right. So ये था हमारा एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा. उसके बाद हम लोग करेंगे कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड टेस्ट. सो कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड टेस्ट के लिए सबसे पहले करेंगे लेट अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 बेस स्टेशन इन द नेबरहुड ऑफ द प्रॉब्लम स्टेशन एक्स इज सिलेक्टेड. सबसे पहले एक्स सिलेक्ट करते हैं. और इन द डेटा ऑफ एक्स स्टेशन रेनफॉल एंड एवरेज ऑफ अ नेबरिंग स्टेशंस, राइट. जो पर्टिकुलर हमने स्टेशन सिलेक्ट किया है उसके सारे रेनफॉल डेटा अरेंज करेंगे और आजू बाजू के जो स्टेशन हैं उसके एवरेज रेनफॉल डेटा हम लोग लेंगे. सो रिवर्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम रिसेंट टू ओल्ड रिकॉर्ड, राइट. हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे. एक्यूमुलेट द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ स्टेशन एक्स, मतलब सम ऑफ द पी एक्स एंड सम ऑफ द पी एवरेज, उसका हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे. द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्रुप बेस्ड स्टेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट रिकॉर्ड. ठीक है, लेटेस्ट रिकॉर्ड से वो वैल्यू स्टार्ट होगी. प्लॉट द सम ऑफ पी एक्स अगेंस्ट द सम ऑफ पी एवरेज. ठीक है, हम लोग उसको प्लॉट कर देंगे ग्राफ के अंदर. एंड डिसाइडेड ब्रेक इन अ स्लोप ऑफ द रिजल्टिंग plot is observed that indicates a change in a precipitation regime of a section X. So therefore it should be corrected by a factor shown on a next slide. So we can see in this slide ऐसे हमारा ये फिगर होगा. ठीक है, ये है डबल मास कर्व एनालिसिस, ये है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड. सो आप ये फिगर में देख सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइन है वैसा होना चाहिए, लेकिन आपका कैसे जा रहा है, ये जो डार्कर लाइन है. ठीक है, सो उसको अब हमें करेक्ट करने के लिए इक्वेशन है हमारे पास PCX इज इक्वल टू PX अपॉन MC अपॉन MA. उसके अंदर ये सारी क्या है, सो PCX क्या है, करेक्टेड प्रेसिपिटेशन एट एनी टाइम ऑफ द पीरियड T1 एट अ स्टेशन X. Px क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्डेड प्रेसिपिटेशन एट अ टाइम पीरियड T1 एट अ स्टेशन X. MC क्या है, करेक्टेड स्लोप ऑफ अ डबल मास कर्व. एंड MA क्या है, ओरिजिनल स्लोप ऑफ अ मास कर्व. ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और हमें डायरेक्टली PCX मिल जाएगा. उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा. सो अ फ्यू कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर मास कर्व और अ रेनफॉल और अ हाइटोग्राफ, राइट. हम लोग ये रेनफॉल डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, सो मास कर्व से करेंगे या फिर हाइटोग्राफ से करेंगे. अब हमारे स्टडीज़ में क्या है, हाइटोग्राफ मेन है. ठीक है, सो हाइटोग्राफ क्या है, सो इट इज़ अ प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट द टाइम एंड प्लॉटेड इन अ क्लोरोलॉजिकल ऑर्डर. सो यू कैन सी इन दिस फिगर टाइम वर्सेस इंटेंसिटी इन अ सेंटीमीटर पर आवर का ये ग्राफ है. ठीक है, जिसमें आपको 0 to 8, 8 to 16, 16 to 40, 24, 24 to 32, 32 से 40, 40 से 48 ऐसे तक के टाइम आवर्स के अंदर आपको दिए हैं और उसके सामने इंटेंसिटी. सो ऐसे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ये है रेनफॉल हाइटोग्राफ्स. इसमें है टाइम इन मिनट्स एंड यहाँ पे इंक्रीमेंटल रेनफॉल इन इंचेस पर 5 मिनट्स बताया गया है. ठीक है,
उसके बाद ये जो हमने देखा था मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल, सो मास कर्व ऐसे बनता है, टाइम आवर में बताया जाता है और उसके सामने होता है एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन इन mm, राइट। सो उसके अंदर क्या शो करता है, टोटल एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन इज प्लॉटेड अगेन द टाइम। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में रन ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको ये लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कीजिए या फिर गूगल मीटिंग में पूछिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।